انشاءاللہ آپ کی فیملی والے بھی کریں گے. صحیح ہے ریحانہ؟ ہاں جی جی اور تجربات ہمیں کال کرتے رہیں اور اپنے تجربات سے آگاہ کرتے رہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سمدھا از دا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم؟ جی سر بالکل موسٹ پاورفل ہے. مطلب اس میں ہر پرابلم کا حل ہے. آپ کی صرف جسمانی بیماریوں کا حل نہیں ہے, آپ کے گھریلو مسائل کا حل ہے, آپ کے معاشرے کے مسائل کا حل ہے, آپ کے ملک کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل ہے. مطلب کوئی ایسا حل نہیں ہے جو اس میں نہ ہو, اس لیے اس کو موسٹ پاورفل سمدھا ہیلنگ کہیں گے. بہت اچھی بات ہے. اچھا اس دفعہ اپنے لوگوں کو تیار کیے ہوئے لاہور کے میں دوسرے لوگوں کو ساتھ آ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ جی سر کہا ہے بہت سے لوگوں کو, اور ملتان سے جو ہے ہمارے بھائی صاحب لے کے آ رہے ہیں, ظفر خان صاحب لے کے آ رہے ہیں کچھ پیشنٹس کو, اور ہم تو یہاں پہ سب کو سمدھا کے حوالے سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرف آئیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو. لوگوں کی زندگی بہتر ہونی چاہیے اور ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے, اور یہ سمدھا کی بدولت ہی ہو سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. جی سر بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی سر, آپ نے میری زندگی پہ بہت, یعنی کہ سمدھا کی بدولت میں نے بہت میری زندگی پہ اچھے اثرات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا بھی دیا ہے, انشاءاللہ میں آپ کو اس سے بھی ملواؤں گی, اور بہت ہی میں آپ کی شکر گزار ہوں. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے, اور بڑے خوشی کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے. اللہ آپ کو خوشیاں دے دے اور زیادہ عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. بہت اچھی بات ہے, آپ نے یاد کیا. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. انشاءاللہ اس دفعہ لاہور آئیں گے ضرور اپنے بچے سے ملوائیں, اور اللہ نے اگر آپ کو خوشی دی ہے, طاقت دی ہے, تو اس سے ضرور ملنا ہے ہم نے. تو ہم چلتے ہیں, بات کرتے ہیں اس طاقتوں پہ اور مثبت طور طریقے سے بات کرتے ہیں, بہترین طور طریقے سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ بدترین چیز ہے. حسد ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انسان, جیسا کہ وہ جلا ہوا لکڑی نہیں ہوتی, حسد والا انسان ایسا ہوتا ہے. جلا ہوا لکڑی تو آپ نے دیکھے ہوئے کیسے ہوتے ہیں, سیم جلا ہوا لکڑی کو دیکھے, جو جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے وہ انسان ایسا ہوتا ہے. حسد والے جو ہے نا وہ دل سے بھی کالے ہوتے ہیں, ہر چیز سے ان کا کالا پن زندگی میں ہوتے ہیں ان کے, اور پھر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں سے کام لیتے ہیں, حسد میں شامل کر دیتے ہیں, دوسروں کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ ایک بدترین روپ اختیار کرتا ہے, جو کہ ایک بدترین شیطانی جو ہے نا وہ ایک شیطانیت آ جاتا ہے اور بہترین شیطانی روپ اختیار کرتے ہیں. جب انسان شیطان 100% کو قبول کرتا ہے تو وہ حسد میں آ جاتے ہیں. جب 100% شیطان کا مانتا ہے تو وہ حسد میں آ جاتے ہیں, اور وہ حاسد انسان شیطان کی طرح ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. ان کے ارد گرد لوگ جو بھی ہو سکے ان سے کام لیتے ہیں, کسی کے لیے استعمال کرنا, ان کو بدترین طور طریقے سے استعمال کرنا, اور اپنے جتنے بھی ان کے سے منسلک لوگ ان کو استعمال کرنا, ان کو بھی حسد میں. یعنی حسد کا مطلب یہ ہے کہ حاسد انسان دوسروں کو بھی حاسد بنا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یاد رکھے, جیلس انسان, حاسد انسان سے دور رہے ہمیشہ, اور اگر خدا نہ کردہ آپ میں ہیں تو پلیز فوراً علاج کرے اس کا. سمدھا ہیلنگ سسٹم ایک بیسٹ اور بہترین طریقہ علاج ہے. غصہ بدترین چیز ہے, غصہ کا بہترین علاج ہے, اور تنگ نظری جو ہے وسط نہیں ہوتے ہیں کسی کی مائنڈ میں, دماغ میں اگر وسط نہیں ہے, اللہ نے وسط نہیں ڈالی ہیں, تو سمدھا ہیلنگ کے تھرو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں وسط, علم کی طاقت کے وسط کو. تو ہم آتے ہیں, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر آتے اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں صادقہ بیگم کر رہی ہوں کراچی سے. میں ابھی آپ سے 1 to 4 کیا ہے اسی مارچ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو کیا کہنا چاہتی ہیں آج موضوع کے مطابق, یعنی غصہ, حسد, تنگ نظری,
जेलेसी कैसे दूर हो सकते हैं थ्रू समदा हीलिंग एनर्जी? क्या पॉसिबल है ऐसा? सर ये क्या उसपे तो वो पॉसिबल हुआ है जो मेरी नजर में पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। सही सही सही। कल जिस दिन मैं आपका वो करके आई थी तो एक औरत मेरे पास आई, कह लगी मेरे गुर्दे में तकलीफ है। मैंने सर उसकी हीलिंग की। 2 दिन बाद उसका बेटा और उसका पोता और उसकी बहू सब बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे। ये क्या बात है भाई? तो कह लगी कि दरअसल वो पत्थरी जो आपने हिली थी ना, सारी पत्थरी निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा तजुर्बा है दुनिया का। अच्छा, निकल गई वो समदा हीलिंग के थ्रू। हाँ सर, और वो पत्थरी उनके हाथ में थी जी, वो मैंने रखनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। जी जी जी। तो कितनी बड़ी बात है। और उन्हीं के साथ एक बच्चा लाई थी वो। आँख में बहुत सख्त तकलीफ थी, अगर आँख को हाथ लगाओ तो उसमें से पीप निकलती थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, यानी बड़ी तजुर्बा है ये। मेडिकली यानी प्रूफ है कि पहले उनको पथरी था, ज़ाहिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और उन्हें सारे एग्जामिनेशन होंगे उनके पास और टेस्ट होंगे उसके पास। उनके पास थी एग्जामिनेशन, और अब मैंने कहा अब आप फिर करवाएं जाके कि कोई पथरी बाकी है। अच्छा, तो मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी दादी ने मना कर दिया कि मैं तो मानी जाऊंगी, मुझे तो मेरी नेबर है वो। अच्छा, पठान लोग हैं। और उन्होंने कहा मैं तो उसी के पास जाऊंगी, वो तो मेरा ऑपरेशन कर रही थी औरत, मेरी डॉक्टर इसने तो अपने हाथ से निकाल दिया। कुछ भी नहीं किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे हाथ भी नहीं टच किया उसने, सिर्फ कुछ किया है और पथरी बाहर। बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी तजुर्बा है दुनिया का, बहुत बड़ी हीलर बन गई माशाल्लाह, बहुत बड़ी हीलर अल्लाह ने बना दी आपको ना। इतनी सी दिनों में मैं इतनी बड़ी हीलर सर कैसे बन गई? हैरानगी की बात है, चंद दिन में ऐसी बड़ी हीलर कैसी बन गई। हाँ, और सुने आगे सुने। हाँ जी। वो बच्ची की मैं बात बता रही हूँ, 7 साल की बच्ची थी। अच्छा। तो कह रही हमने 2 दफा ऑपरेशन करवाया आँख का, कितने हजार रुपए देकर, तो आप इसको भी हील करें। मैंने सर उसको भी अल्लाह का नाम लेके हील किया। और आज वो आई थी तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी आँख कैसी है। तो उन्होंने कहा उसकी आँख तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है और बहुत थोड़ी सी वो निकल रही है, अगर आप एक दफा और हील देंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वरना हम तो बिल्कुल बेआस हो चुके थे। बिल्कुल क्योर हो गई? बिल्कुल क्योर हो गई सर। मैं हैरान हूँ कि अल्लाह ये क्या मैंने किया कि बिल्कुल हील हो गई, मैंने गोद में लेके किया था। अच्छा, मैं एक बात कहूँ, देखिए आप तो स्टूडेंट है, दुनिया अजीब गरीब है। दुनिया वालों को जो आजकल जो मशीनी मसनूई दुनिया हो गई ना, इंसान मशीन ने इतना घेर लिया हमें कि हम अपने आप को भूल गए। और कायनात में जो सरबस्ता राज है, जो नियामतें मौजूद है, जो हर तरीके का इलाज है और हर मसाइल का इलाज है, वो हम भूल चुके हैं, जिसकी वजह से इंसान को बहुत हैरान कुन लगते हैं। या फिर बिल्कुल ही हैरान उन लोगों को नहीं करते हैं जो बिल्कुल मशीन बन चुके हैं, यानी रिबोट बन चुके हैं, उनको हैरान नहीं करते हैं। हैरान उनको शख्स को करते हैं जो थोड़ा नेचर के करीब और इस चीज को समझते होते हैं। आज ही एक शख्स आया था जी, उन्हीं लोगों में से था, वो पठानों में से, मेरे लेबर है बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मैं कभी बिल्कुल ठीक होता हूँ, कभी ऐसा लगता है मैं हूँ ही नहीं, कभी मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, यानी एक पागल की जिंदगी हो जाती है जहन। आप आए मेरे पास बैठे, सही। मैंने सर उनको हिला, तो जब वो गए तो कह रहे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फूल जैसा हल्का हो जाऊँ। आपने मुझे क्या किया, आप तो बहुत भारी है। मैंने कहा मैंने तो बस समझा का वो किया है और तो कुछ नहीं किया। सही सही सही, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको और ताकत खुशियां अता फरमाए, पावर अता फरमाए, बहुत बड़ी हिलर बन गई। और जब आपने इतना कुछ कर दिया, मेरी समझ में ही नहीं आता कि इसका सारा मेरे हिस्से में आ गया। इतना ज्यादा कि मैं हाथ लगाती हूँ ठीक हो जाता है। अच्छा, जब आप पहली बार आई थी, मुझे पता है आपको मैंने पहचान लिया था, याद है आपको, जो आप बता रहे थे जिंदाबाद डॉक्टर समद, जिंदाबाद डॉक्टर समद, जिंदाबाद।
हाँ, मैंने कहा था डॉक्टर, उस दिन डॉक्टर साहब मैं पहचान गई थी। मुझे याद है आप बैसाखी पे चल रहे होती थी ना, याद है? फिर आपने फेंक दिया था। हाँ बिल्कुल फेंक दिया मैंने उसको उठा के। हाँ मुझे देखे, मैंने पहचान लिया आवाज से। दिल को दिल से राह होते है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पहचान लिया। और मेरी बेटी को भी आपने पहचाना होगा, मेरी बेटी भी आपके पास आई थी जी, लेने आई थी, तो आपने कहा था कि वो तो 9 बजे आएगी। हमें ये डॉक्टर कितना प्यारा है। तो ये तो मैं अपने बेटी को ऐसा होगा चोगा पहने, मैंने कहा रही जैसा तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। और कहती आप कैसे बैठ गई अम्मी 3 बजे से 11 बजे तक? हाँ। ये तो अंदर से पूछो कैसे बैठ गई। सही अभी सही। तो सर मुझे आपके पास बहुत कुछ करना है। बहुत बड़ी बात है। आप आई थी 3 बजे से बैठी हुई थी और तकरीबन रात को 11 बजे गई थी, 11 बजे तक। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने फ्रेश लग रही थे, इतने तरोताजा लग रहे। आपके साथ आपके माशाल्लाह बेटी भी थे और आप लोग फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे ना? बिल्कुल मैं फ्रंट सीट पे। मुझे याद आ गया। देखे मैं पहचान लेता हूँ जो दिल को राह होते हैं ना, हमारे दिल को। तो ड्राइवर ने कहा कि मेरा ड्राइवर जब दरवाजा खुल रहा था तो मैं बैठती थी, हाथ पकड़ के बिठाता था। यानी मेरी हालत तो ऐसी थी ना, लेकिन वो हालत ऐसी हो गई तो मैंने कहा यू शट अप, हाथ तुमने खोला दरवाजा, मैं खुद खोलूंगी, तुम बैठूंगी। माशाल्लाह सीढ़ियां नीचे उतर के चली गई। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है। और अल्लाह ने आपको इतनी खुशियां दी, इतनी ताकत अता फरमाए। ये मैंने उनसे यही कहा है कि भाई मुझे ताकत समझा ने दिया, आप मेरे साथ चले, गाड़ी में बैठे, मेरी गाड़ी होगी, मैं आपको पहुंचाऊंगी वहाँ पर। आप भी मेरी तरह सीखे और लोगों की मुश्किलों को हल करें। आज तो आदमी रोता हुआ आया था और हंसता भी हुआ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। मुझे कैसा, अगर आप इस तरह करेंगी जिस तरह आप कर रही हैं तो ये तो पूरी दुनिया आपके पास आ जाएगी, फिर क्या होगा? बिल्कुल आएंगे, जरूरत है। आपने देखा उस दिन, आपको याद है कि वहाँ पर इतना रश था कि जगह ही नहीं थे। जमीन में बैठे हुए थे लोग जमीन पे बैठ के इतने बड़े हॉल में, और लोग नो एंट्री लगा दे, लोग चले गए। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग क्योर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, लोगों को ये तजर्बा है और इस वजह से लोग आ रहे हैं। तो तजर्बा ही हुआ ना, तभी तो मैंने किया है ये। जी बहुत बड़े तजर्बा ना होता तो मैं समझती पता नहीं क्या है, लेकिन वो एक ही दिन में ही सब कुछ बिगड़ गया। कहते हैं ना एक दिन में बदल गई दुनिया। बिल्कुल बदल गई दुनिया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। शुक्र मचाना शुरू कर दिया और आपका गाना गाना शुरू कर दिया कि ये मेरा डॉक्टर भी है, मेरा बेटा भी है। जी जी बिल्कुल, मैं आपका बेटा भी हूँ, आपका मालिक भी हूँ, है ना, दोनों सही है। मैं आपकी पेशेंट भी हूँ। हाँ आपकी पेशेंट भी हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि आप हमारे डॉक्टर हैं। हाँ माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अब में रहती हूँ ना, तो मेरी बेटी वो करती है, योगा मास्टर है। अच्छा तो उससे जो नहीं मतलब होता है ठीक, वो सीधी मेरे पास भेजती है उसको। तो सर वो ये चुटकियों में हाल होके भागते हैं। माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई माशाल्लाह, इतनी बड़ी हीलर बन गए। अल्लाह ताला आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। तो इसका मतलब है कि जो हसद है, तंग नजरी है, गुस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल ये हील कर सकता है, इतनी अच्छी तरह कर सकता है। मैं खुद इसकी शाहिद हूँ, मैं इसकी यानी गवाही देती हूँ कि मैं खुद इतना रोया करती थी कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया था। अब सर मैंने रोना छोड़ दिया। अब यकीन करेंगे, मैं कसम खाती हूँ, वरना मेरी आंख से आंसू नहीं रुकता था। और बस कुछ एक चीज ऐसी है जो मुझे खुश रखती है, और मैं सब कुछ भूल गई हूँ और लोगों की खिदमतें भी क्या गई। अल्लाह आपको सब्र दे और अल्लाह आपको और खुशियां दे और ज्यादा और अता किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त सब कुछ आप में है ना। वो सब में पैदा, वो तो मुझ में तो सर पैदा होनी थी, आपने मुझे समझा दिया था। मेरी बेटी में पैदा हो गई, जो मेरे से कभी कभी लड़ पड़ती थी ना। मैंने देखा वो भी कभी कभी मुझे चिपट के प्यार करती कि मेरी प्यारी अम्मी आप नाराज नहीं हुआ करें। मैं खुद हैरान हूँ कि अल्लाह इसको क्या हुआ।
हाँ, मोहब्बत होती है, ये तो मोहब्बत का एनर्जी है। बहुत अच्छी तजुर्बात है और मेरे से शेयर करती रहे हमेशा। देखिए हमेशा प्लीज हमेशा याद करती रहे, कॉल करती रहे। और इस वजह से मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ, इस वजह